Good morning, student. So today we are going to discuss the same chapter, but the topic is different. Dear student, the chapter globalization and the Indian economy, we had already discussed large amount of things. The name of the chapter is globalization and Indian economy. In the previous topic we had discussed about the meaning of globalization. Then after we had discussed that what are the factors which help to make to develop the globalization, what is trade, what is investment, है ना. Then after we had discussed that how the markets are interlinked. All these things we had discussed. Today we are going to discuss that WTO. What is WTO and why it is connected with globalization? Beta, if we talk about the WTO, World Trade Organization, and globalization, both are complementary to each other. एक दूसरे के पूरक हैं. बिना वर्ल्ड ट्रेड के ग्लोबलाइजेशन असंभव है. ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही हुआ कि if we supply the goods, import the goods from different countries, that is known as globalization, and these things should be done by the trade, and the trade must be world trade. So to monitor the world trade, there is an organization, that is WTO. WTO is an organization which monitor the free flow of trade across the world, across the country, across the world. WTO is an organization whose aim is liberal international trade. Liberal international trade means no other countries can impose their own duties, can impose their own taxes and rules and regulations, so that the trade of other country should be hindered, stopped, affected. ठीक है, इसीलिए आपका WTO was started. It was established in the year 1995. 1st January 1995 को ये establish किया गया था, and it was replaced. WTO was replaced by आपका GATT. GATT. It was an organization which was monitoring the international trade before WTO. But when the new economic policy came, when the production of every country increases, then they thought that now there is change, there should be a changes, must be introduced, and that's why they introduced आपका WTO. When the WTO was introduced, there was 123 countries were signed that 123 countries signed, and they become the part of WTO. The headquarters of WTO is in Geneva, Switzerland. In Geneva, Switzerland, the headquarters of WTO is found. Now after, this is something brief. When we go deep to the WTO, then we find out that WTO is an organization which is made by the developed countries. Initiative taken by the developed countries. WTO was made on the initiative made by the developed countries, and that's why WTO work under the developed countries. So one thing came in your mind that कि अगर WTO आपका developed countries ने बनाया है तो क्या होगा कि developed countries must take more and more profit. The developed countries will take more and more profit, and by whom they will get more and more profit? They will get more and more profit by आपका by the developing countries, है ना. developing countries से उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का काम हो सकता है, या उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है फ्रॉम द WTO. अब हम बात ये करते हैं बेटा कि WTO जब बना उसके बाद व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन द अदर कंट्रीज़. का इम्पैक्ट आपका दुनिया भर के देशों पर क्या पड़ा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपका है फीचर्स ऑफ WTO. व्हाट इज़ द फीचर, है ना. WTO का फीचर क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द फीचर. द फर्स्ट फीचर ऑफ WTO इज इस्टेब्लिशिंग रूल्स बेस्ड on trade regime. Trading countries, regime means countries.
मीन्स ऑल द कंट्रीज हु आर मेकिंग ट्रेड देयर मस्ट बी अ रूल, प्रॉपर रूल्स दैट कि आप क्या इंपोर्ट कर सकते हो, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट यू कैन मेड, हाउ मच क्वालिटी ऑफ थिंग्स यू कैन मेड द इंपोर्ट। इसके लिए देयर मस्ट बी अ रूल्स, है ना, फ्री फ्रॉम आपका द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कंट्रीज। Restrictions, some countries where they are there who try to make more and more restrictions on the other countries में हम चाहें तो फिर दूसरे देश में जाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे कंट्रीज़ को अपने देश में आने नहीं देंगे, है ना। दैट इज़ अ टाइप ऑफ थिंग्स विच इज़ मेड फॉर मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट टू डेवलप देयर डोमेस्टिक कंपनीज मोर। फॉर दैट देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु हैड they have dual rules regarding the WTO. For other for importing the things they had different rules, and for the exporting of the things they have different rules. So to reduce all these things there must be a rule, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आपका ट्रेडिंग कर सकते हो तो फिर आप जितना चाहो उतना आप ट्रेड कर सकते हो, नो। Means you must utilize the international resources optimum, minimum utilization, maximum output, minimum input and maximum output की बात जो होती है। Means you should destroy the natural resource, you should destroy the environmental resource very less। इसका मतलब नहीं कि आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर आप जो चाहो वो डिस्ट्रॉय करो, नो। So there should be ensuring optimum utilization of international or the world resource. Next आपका है protecting environment. The third important feature is protecting the environment. इसके ऊपर बात होती है आपका। सबसे पहले हमने फीचर पढ़ा आपका WTO का कि क्या होगा, establishing rule for all the countries। नेक्स्ट आपका है टू हम ऑप्टिमम यूज़ की करें, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स। तीसरा है आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करें। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल डिस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर समस्या जो है ज़्यादा बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसे आपका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। सो इट इज़ द वर्क ऑफ WTO टू मॉनिटर ऑल दिस थिंग्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन WTO का है, फीचर्स है, प्रोटेक्टिंग द इंटरनेशनल ट्रेड बाई रिमूविंग द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर बाई प्रोवाइडिंग द रूल्स, है ना। मीन्स टैरिफ बैरियर जो आपका ट्रेड बैरियर है जो कि हर देश इम्पोज कर देते हैं, उस ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करने का, ख़त्म करने का काम WTO का है। अगर WTO इस टैरिफ बैरियर को या ट्रेड बैरियर को ख़त्म करेगा, सो द फ्लो ऑफ मनी, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड द फ्लो ऑफ द सर्विसेज विल बी इजीली पॉसिबल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और एक देश से दूसरे देश में आपका सामानों का आदान प्रदान ज़्यादा होगा तो ग्लोबलाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं दैट विल फ्लोरिश, है ना, दैट विल फ्लोरिश। दैट इज आल्सो द वर्क ऑफ WTO, है ना। सो वी हैड स्टडीड आपका 4, पहला आपका एस्टेब्लिशिंग द रूल्स फॉर ऑल द कंट्रीज, दूसरा हमने बात किया कि आपका ऑप्टिमम यूज़ किया जाए वर्ल्ड रिसोर्स का, तीसरा हमने बात किया प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए, और रिड्यूसिंग द ट्रेड बैरियर और द टैरिफ बैरियर विच इज़ मेड अक्रॉस द कंट्रीज, है ना। ट्रेड बैरियर या टैरिफ बैरियर को भी हम लोग क्या करें, रिड्यूस करें, सो दैट द मार्केट शुड बी ओपन फॉर ऑल द कंट्रीज, ऑल द कंपनीज, है ना। प्रोटेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड जो हमने चौथा पॉइंट पढ़ा है वो क्या है, प्रोटेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिमूविंग द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर बाय प्रोवाइडिंग ग्रेट मार्केट अक्रॉस द मेंबर ऑफ द कंट्रीज। मीन्स मोर एंड मोर मेंबर विल कम एंड पार्टिसिपेट इन द WTO। वहीं WTO was established, मैंने आप बात किया 1995 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया और उस समय 123 कंट्रीज़ थे, इस समय आपके 164 कंट्रीज़ हैं। तो ये जो 164 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सभी देश आपस में एक दूसरे को सामान का निर्यात और आयात कर सकें। दैट इज़ द
मेन फीचर ऑफ WTO, है ना। WTO के फीचर्स हमने ये 4 फीचर्स WTO के पढ़े। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ WTO का फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आपको इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द वर्क, व्हाट इज़ WTO, दिस क्वेश्चन विल कम ऑफन कम इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़े आपका फंक्शन ऑफ फीचर्स ऑफ WTO। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ते हैं दैट इज़ आपका फंक्शन ऑफ आपका WTO का फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन क्या है आपका WTO का है, एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ WTO इज क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिंग द वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट हुआ है हर देश के बीच में ट्रेड के को लेकर, उसको एडमिनिस्ट्रेटिंग करना, उस पर उसको नियंत्रित करना। ये नहीं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपने मन मुताबिक दे कैन डू द ट्रेडिंग एंड दे इम्पोज सर्टेन आपका रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अनडेवलप्ड कंट्रीज और द डेवलप्ड कंट्रीज। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ WTO इज आपका एडमिनिस्ट्रेटिंग आपका वर्ल्ड ट्रेड WTO ट्रेड एग्रीमेंट ना। जो एग्रीमेंट हुआ है बिफोर ज्वाइनिंग इन WTO यू मस्ट हैव साइन अ एग्रीमेंट, है ना। तो ये जो एग्रीमेंट है इस एग्रीमेंट को मॉनिटर करना कि सभी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा आपका क्या है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड फंक्शन ऑफ WTO, द सेकेंड फंक्शन ऑफ WTO इज हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, है ना। हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, है ना। अगर किसी भी देश के बीच में ट्रेड को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है ना, वो आनाकानी होती है, डिस्प्यूट होता है, तो ऐसे हालात में उस डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने का काम WTO का ही होता है। मीन्स WTO वर्क एज ए सुप्रीम बॉडी ना, WTO वर्क एज ए सुप्रीम बॉडी टू मॉनिटर ऑल दिस थिंग। तो पहला हुआ एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, दूसरा हमने बात किया हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स, तीसरा हमने बात किया फॉरम ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन, है ना। फॉरम्स ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन, समझौता, है ना। ट्रेड नेगोशिएशन के लिए एक अच्छा माहौल, एक हेल्दी माहौल तैयार करना ट्रेड के लिए, जिससे कि आपस में सब देश ट्रेड कर सके। तीसरा आपका है, चौथा फंक्शन है मॉनिटरिंग द नेशनल ट्रेड पॉलिसी। मीन्स द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो द पावर दैट कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन द कंट्री, हाउ द ट्रेड इज गोइंग विद इन द कंट्री, इट इज़ बीन आल्सो मॉनिटर बाय द WTO। किसी भी देश के अंदर अगर ट्रेड जो हो रहा है उस ट्रेड को भी मॉनिटर करने का अधिकार WTO को है ना। तो मॉनिटरिंग द नेशनल ट्रेड पॉलिसी, देश की ट्रेड पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द ट्रेड पॉलिसी ऑफ चाइना, है ना। इस ट्रेड पॉलिसी को भी मॉनिटर करने का काम आपका WTO का होता है। तो हमने चौथा जो पॉइंट पढ़ा है ये हुआ मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसी, है ना। मॉनिटरिंग द नेशनल ट्रेड पॉलिसी, इट इज़ आपका फोर्थ वन। द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट ऑफ WTO के अंदर जो बात हुआ इसके बाद के बारे में बात करना, हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स के बारे में बात करना, और इसके बाद हमने फॉरम ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन, इट इज़ द फोर्थ। एंड द फिफ्थ इज टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ WTO कि आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़, उनको टेक्नोलॉजीज़ देना और क्या करना, ट्रेनिंग देना। इनको टेक्नोलॉजीज़ भी मुहैया करवाई जाए, टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजीज़, टू प्रोवाइड, यू कैन राइट, टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजीज़ एंड ट्रेनिंग,
है ना, टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेनिंग टू द डेवलपिंग कंट्रीज, दीज आर द फंक्शन ऑफ WTO। तो बेटा आपने WTO के 4-5 फंक्शन पढ़े हैं, आपने फीचर्स भी WTO के पढ़े हैं, और हमने एक छोटा इंट्रोडक्शन भी दिया अबाउट द WTO कि WTO कब फॉर्म हुआ एंड व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ WTO एंड व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दैट कि क्या WTO एक फेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इंस्टीट्यूट ऑफ दैट वी विल आल्सो स्टडी कि जो ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, उस ग्लोबलाइजेशन के से आपके देश में क्या आपके देश में क्या उसकी मेरिट्स हैं एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स, है ना, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ आपका ग्लोबलाइजेशन। इससे आपके देश के जो उद्योगपति हैं, आपके देश के जो वर्कर्स हैं, उनको क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ है, देश को क्या फ़ायदा एंड क्या नुकसान हुआ है। वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।